Hello, my dear students. Myself Pushpendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Pedagogy of Economics में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स. The Dictionary of Economics states that the broader line between economics and other disciplines like psychology, sociology, accounting, and geography are not easily defined, and it is perhaps not particularly productive to do so. It further states that political economy, an early title for the subject, now sound old fashioned. Economics and commerce, their mutual relationship. Economics and commerce are closely related to each other. Economics provide the base of commerce as a subject of study. इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स है आपस में बहुत ज़्यादा ही क्लोज रिलेटेड. हर एक कॉमर्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट चलती है. तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के जो कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक्स के लॉज पर बेस होते हैं. और ठीक है, तो ना नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the society. Likewise, the development of commerce as a discipline is linked with the development of economics as a discipline. Arthur Malthy in Economics and Commerce explained the relationship of economics and commerce in these words. Economics is fundamentally concerned with the problem arising from the production of goods and services and the demand of them. And commerce on the other hand is essentially involved with their distribution and the various process and services with make distribution fully efficient. जो इकोनॉमिक है वो मोस्टली आप लोगों ने देखा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज और उनकी डिमांड से रिलेटेड है. कॉमर्स इनके डिस्ट्रीब्यूशन से और इनके वेरियस प्रोसेस होती है और ज़्यादा प्रोसेस कुछ और प्रोसेस है और सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है. इस कारण से दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है. एंड what while the economics may study the reason why which one method of distribution can be more advantageous than other, the allied activities of commercial enterprise deal with the way in which distribution to actually achieve. Study of commerce is based on production and exchange with our economics factor. जो कॉमर्स की जो है स्टडी ऑफ कॉमर्स है स्टडी ऑफ कॉमर्स है वो बेस है प्रोडक्शन पर एक्सचेंज पर. और जो एक्सचेंज और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट देखा इकोनॉमिक्स के ही फैक्टर है. इम्पोर्टेंस टॉपिक इन विच कोरिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स. देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंस टॉपिक्स रिलेटेड है इकोनॉमिक्स कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के आपस में एक दूसरे से. डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन करेंसी, इकोनॉमिक लॉज एंड प्रिंसिपल. तो ये सारे कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं. नाउ नेक्स्ट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस. इकोनॉमिक कैसे रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से वो डिस्कशन करेंगे अब. इट इज़ ऑफ द ग्रेट इंटरेस्ट टू नोट द इकोनॉमिक इज द पास्ट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. कौटिल्य अर्थशास्त्र was a manual of statecraft as well as a treatise on economics. In modern times, McLever and Marx have regarded both the science to be closely interrelated. Economic interpretation of history as discussed by Marx has established beyond doubt that economics and political science are inseparable. Gandhiji was both a political scientist as well as economist. Economic situation have a decisive say in the political life of country. Economic condition in Russia brought about a new form of political government. Similarly, political setup various countries have great affected
द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिसीज। जो आप देखो रिलेटेड कैसे है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। एक इंडिया की पॉलिटिक्स और अमेरिका की पॉलिटिक्स के आपस में, एक पावरफुल कंट्री है अमेरिका, तो अमेरिका इंडिया पर पॉलिटिकल प्रेशर करके इंडिया की इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ है उनको चेंजेस करा सकता है। इंडिया दूसरे उससे थोड़े जो कमज़ोर देश है उन पर प्रेशर डाल के उनकी पॉलिसी चेंज कराता है। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इस तरीके से रिलेशंस है, एक दूसरे की जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। Aristotle described in details economic problem of the state in his book Politics. Chanakya's Arthashastra, as already referred to, discuss various political aspects like justice, war, peace, and diplomacy side by side with agriculture, commerce, revenue, currency, and other economic and financial aspects. ये सारी चीज़ें हैं, जस्टिस है, वॉर हुआ, पीस, डिप्लोमेसी, ये एक दूसरे एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है, कॉमर्स के साथ कनेक्ट है, रेवेन्यू, करेंसी, इन इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इनके साथ रिलेटेड है, को रिलेटेड है आपस में। सम एग्जाम्पल ऑफ को रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड सिस्टम, colonization and decolonization, मॉनेटरी सिस्टम, टैक्सेशन, ये एक दूसरे के आपस में टैक्स पॉलिसी, जैसे कि आप लोगों इंडिया की जो टैक्स पॉलिसी है सुना होगा आप लोगों ने अधिकतर, इसमें जो आप लोगों के अपने इंडिया के जो बिजनेसमैन्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं, टैक्स पॉलिसी को उनके अकॉर्डिंग बनवाने की कोशिश करते हैं वो अपने प्रेशराइज करके ओके। तो इस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है टैक्सेशन में भी। तो टैक्स जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी। इन द प्रेजेंट एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल मोर बाय इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फोर्सेज। इन इट इज therefore in the teaching of economics a good deal of attention is paid to geographical conditions which have a great bearing on economic activities. Economic geography has become an integral part of economics in some respects. In economic geography, various situations are described in which geographical factors play an important role. In other words, economic geography is the study of man activities and control and influence by physical environment, agriculture, and minerals, and forest industries, and trade, all of the influence by geographical or physical environment. देखो जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है जैसे कि एग्रीकल्चर है, भी एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, मिनरल्स है, अपने फॉरेस्ट है, ये जोग्राफिकल बेस है। तो इकोनॉमिक्स जो प्रोडक्शन कहीं कोई फैक्ट्री स्थापित होगी तो वो इन सब के बेस पे ही उसकी जो प्रोडक्ट्स की प्राइस होगी। जैसे कि कोई इन्वायरमेंट ऐसा बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट है कंपनी के लिए प्रोडक्शन में, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, तो वहाँ की उस प्रोडक्ट की प्राइस लो रहेगी, कम प्राइस रहेगी, चीपेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो। अगर इन्वायरमेंट और एग्री ये सारे उसके और जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स इजीली उसके अगर किसी कंपनी को इजीली प्रोवाइड नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते कंपनी के पास, तो वो दूर से मंगवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह डिपेंड करती है, तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो जोग्राफिकली और जोग्राफिक और इकोनॉमिक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं ये। द जोग्राफिकल फैक्टर डिटरमाइन टू ग्रेट एक्सटेंट द मीन ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल्स की जो जीवन रेखा है उसको भी कनेक्ट रहती है, जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। When geographical conditions are favorable, economics activities relating to agriculture, commerce, trade, industries flourish. अगर जोग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल है तो ये सारे फ्लोरिश हो जाएंगे, ये इनकी ग्रोथ करने लग जाएंगे सारे ऐसे सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर कम्स अप on account to climate factor, coal mines, and lead to the development of coal industry in those areas. Sugar mills are established in the area which grow sugar cane in evidence. शुगर जो आपने देखोगे शुगर मिल्स होंगी, उस जहाँ शुगर ज़्यादा होते हैं वहीं एस्टेब्लिश होती है अधिकतर। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर में शुगर कैन बहुत ज़्यादा
क्वांटिटी में होती है, तो वहाँ पे गंगापुर शुगर मिल से स्थापित है ऑलरेडी। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक कंपनीज है, इकोनॉमिक में कंपनीज को जोग्राफिकल डिपेंड जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड जोग्राफी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई इंडस्ट्रीज लोकलाइजेशन ही देखती है कि ये चीज़ें हमारे पास इजीली, आपने देखे उधर जाए अपन छत्तीसगढ़ साइड तो और झारखंड साइड, तो देखे धनबाद में देखे तो कोल माइंस है, तो कोयले की जो फैक्ट्रीज वगैरह जो भी है कोयले में अधिकतर वहीं है इस वजह से। और इंडियन ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमिक और जोग्राफी के आपस में कोरिलेटेड एग्जांपल्स हैं। इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैव बीन ग्रेट डिटरमाइनर्स ऑफ historical events. It is common knowledge that the economic prosperity of India attract foreign investors who, in due course, economic and history. Economics factors have been great determiners of historical events. It is common knowledge that the economic prosperity of India attracted foreign invaders who in due course greatly influenced the history of India. The British dominations of India was on account of the economy and commercial activities for the East India. आप लोगों ने देखा होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तब उसने इंडिया की जो इकोनॉमिक्स थी, अधिकतर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थे उन पर सब पे कंट्रोल कर लिया, उनको अपने अकॉर्डिंग वो चलाने लग गए थे, अपने अकॉर्डिंग उनके सब कुछ उनका अकॉर्डिंग हो गया था। तो हिस्ट्री कनेक्टेड है ना कि इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस फैलाया, इस तरीके से हिस्ट्री कनेक्टेड है इकोनॉमिक के साथ। With the beginning and the end of British rules in India, a new chapter in the history of India is clearly discernible. History tells us how different countries achieve rapid economic development by adopting particular policy, and how these policies could be adopted by underdeveloped country for the betterment for their economics. हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ते हो गए कि उस देश ने इस तरीके से, हाँ एक एग्जांपल लेते 5 ईयर प्लान्स का। 5 ईयर प्लान्स कहाँ से, रसिया से स्टार्ट होके हमने 5 ईयर प्लान अपनाए, हमने अडॉप्ट किए वो, तो हमने 5 ईयर प्लान्स 13 5 ईयर प्लान्स बना लिए थे। 12 से 13 5 ईयर्स प्लान्स के अकॉर्डिंग हमने इंडिया का डेवलपमेंट करने का प्लान किया। ये तो इस जो किस तरीके से, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ने कॉटन वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बेस पर अपने आप को पावरफुल बनाया, अपने आप एक कंट्री की खुद की ग्रोथ की। तो ये हिस्ट्री कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स से। एवरी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड सॉल्व satisfactorily in the light of historical background. History describe the story of man, and economics describe the activities of man in relation to production, distribution, consumption and exchange. History describe the social nature of all economic activities of man. मैन की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक्स की, वो आपस में डिस्क्राइब करती है उसको, सोशल नेचर को, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कंजप्शन और एक्सचेंज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इनका सोशल नेचर डिस्क्राइब करती है हिस्ट्री। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इन सेवरल कंट्रीज हैव रैपिडली चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दीज कंट्रीज। जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया तब बहुत सारी कंट्रीज़ में रैपिडली चेंजेस हुए, रैपिडली ग्रोथ हुई, तो उन्होंने अपने आप की हिस्ट्री ऑफ दी जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री थी उसको वो चेंज ही हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, वो गरीब से अमीर हो गए, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक विद हिस्ट्री। ऑन अकाउंट ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री, सम स्कॉलर tend to call these as twin sister.
बहुत सारे जो स्कॉलर्स है उन्होंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को इसके आपस में जो रिलेशनशिप के उसके बेस पे इसको ट्विन सिस्टर का है. द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ अमेरिकन independence where the outcomes of economic consideration why and large led of the first world war, second world war. ये इकोनॉमिक बेसिस वजह से ही तो हुए थे. देखो अमेरिका में जब वार हुए उसकी वजह से गृह युद्ध हुए थे, तो गृह युद्ध की वजह से अमेरिका की दशा ही बदल गई. जापान, नेक्स्ट एग्जांपल, जापान established its supremacy over China for a considerable period on account of economic consideration. This changed the course of history. तो ये था इकोनॉमिक और हिस्ट्री का कनेक्ट कोरिलेशन. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. Recently, the relationship of economics with mathematics and statistics have become very closer. Statistical data have become an important instrument in providing several theories of economics. Statistical data in economics provide concreteness and vividness to various economic situations. In the word of Marshall, statistics are the straw out of which I like every other economics have to make bricks. RGD एलर्स के अकॉर्डिंग देखो, द इकोनॉमिक्स गेट्स नाउ वेयर विदाउट स्टैटिकल गाइडेंस. द स्टैटिशियन हैव ए फ्यू स्टॉक आंसर बट नीड मोर इंस्ट्रक्शन फॉर एन इकोनॉमिक देन ही इज यूजुअली गिवन. ड्राइंग ऑफ कर्व्स, diagrams, graph, sketch and tables in economics depends on the knowledge of mathematics and statistics. तो प्रॉपरली कोरिलेटेड हो गई ना, इकोनॉमिक्स है वो प्रॉपरली कोरिलेटेड हो गई मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के साथ. देयर इज नो डाउट द स्टैटिक्स हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. विदाउट स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट. एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद मैथमेटिक्स: Malthus theory of population, quantity theory of money, Keynes theory of interest, business knowledge, law of production, law of demand, supply, elasticity of demand, customer surplus, mathematical curves, diagrams, graphs and tables etc. ये एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के आपस में रिलेशंस के. नाउ रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. Recently, the economics and educational planner have begun to take a keen interest in the relationship of economic development and educational development. According to B.G. Tilak, who has done very useful work in the area in India, the relationship between educational growth and economic growth is a two-way process, one of reciprocal nature of mutual contribution. John Wise in his book The Economics of Education has humorously but rightly described the relationship between economic growth and educational growth like a chicken and egg. The system of economy or the economic order or economic philosophy and the system of education are interdependent, each influence the other. The system of education in the following system of economy greatly differ in the several aspects: aims, contents, methodology, discipline, organization, etc. And trade economy, industrial economy, capitalist economy, mixed economy, socialistic economy. ये जो इकोनॉमिक्स है ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप एजुकेशन और इकोनॉमिक्स का रिलेशन शो करती है. इकोनॉमिक एंड सोशियो नेक्स्ट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन इज सोशियोलॉजी. इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी. Till recently, economics and sociology did not form separate discipline. They were considered as one
economic and sociology have a great bearing on each other. Economic and social conditions of a society are interrelated. इकोनॉमिक सोसाइटी के बेस पे काम चलती है और सोसाइटी इकोनॉमिक्स बेस पे काम करती है. आप लोगों को देख लो, डिमांड सप्लाई की थ्योरी पढ़ लो, नेशनल इनकम पढ़ सकते हो, थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर देख लो, ये सब सोशियोलॉजी तो है. इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो एक्सरसाइज ए ट्रीमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल स्ट्रक्चर. They determine the way of living of different sections of the society, their status in the society and their food habits also. The social structure of capitalistic society will largely differ from a socialistic society. तो जो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने अभी हमने डिस्कस किए, इकोनॉमिक्स इतने सारे सब्जेक्ट आपस में डिस्कस, ये आपस में कोरिलेटेड है. इकोनॉमिक्स कॉमर्स के साथ है, हिस्ट्री के साथ है, मैथमेटिक्स के साथ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ है, ज्योग्राफी, ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड, कहीं ना कोई कोरिलेटेड है. तो हमने इन सबकी स्टडी की आज. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू बच्चों.